Let's start. So now the very first thing that we are going to understand today is partitioning, right? So let's understand what this process is. The thing is, when I talk about your operating system, if I talk about the memory that is allocated for the operating system, some memory is being allocated and reserved for the operating system. You know that whenever if I talk about your laptop, there is some operating system being installed in your system. Yes or no? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. And that will also require some space. Okay, so some space is being given to the operating system, and this area, remaining area, is for the user. And what the user will do, it will run several programs and processes, right? तो उसको वो run करना है, तो उसके लिए he needs space, right? Now Yes, let's ma'am. understand, agar we have only uniprocessor, if I have a single process, let's say I have only one process, right? So what is the problem? No problem. You can simply, put that particular, this is for OS, and you can put this process P1 here in the memory. But the thing is, we also studied in the previous lecture that the main concern of your memory management is what? Is it only to run a particular process or what? What else? What do you think? एक ही process बस run कर ले, that is enough? No, ma'am. To No, efficiently ma'am. run multiple processes. Multiple processes. The focus is that we want to run more than one process at the same time, and this concept is called as multi-programming. So here in memory management, our concern is not simply to run a particular process. Like we did in process management in module 2, हमने क्या पढ़ा था CPU scheduling में? एक टाइम पे एक प्रोसेस ही होता था ना उस टाइम पे CPU में, दूसरा चला जाता था. बट वी ऑल्सो रिमेंबर कि हमने जब राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग किया था तो क्या हो रहा था, सबको इक्वली चांस मिल रहा था, राइट और नॉट? So the thing is, we studied those things there, but here the concern is that we want to allocate more than one process to the memory. And how is it possible? The whole thing in detail we will be studying in this module. One of the most important, I would say, if it is not taught properly or if you will not pay your attention, this will be the most hardest also, in case when you will be doing the numericals. So be available here when I am teaching you. So basically here we have partitioning, and in partitioning what we are doing is we are trying to divide this memory which is given to the user into different partitions, right? And why do we do that? We do this because we want to allocate more and more processes. Understood or not? अभी एक बात बताओ, आपका अगर 1000 गज का घर है, गज पता है ना सबको, स्क्वायर Yes, फीट. ma'am. Yes, ma'am. So if you have a 1000 square feet home and you are the only person over there, will it be worth? Will you be utilizing it well? You have several people, then memory. No, ma'am. What will be the right thing? That 1000 square feet will be divided in such a way that, let's say you are dedicating 400 square feet for your home, then maybe 100 for your garden, है ना? 100 for maybe some kind of innovation gallery kind of things, some for your playground kind of things where you can play cricket or badminton and all. बोलिए, करेंगे ना आप ऐसा? ही सारे पे घर बना के, इतना बड़ा घर बना Definitely, के, ma'am. उसमें Yes. अकेले ही रहना सोचेंगे, बस चलो अब बस मैं इसमें रहूँगा 1000 गज के घर में. So this is not right. So basically that is not utilization of space. ऐसे तो तुम अगर ये पूरा एमिटी को, अगर कैंपस को लो, यहाँ पे कितने सारे बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स में कितने सारे फ्लैट्स हैं, और अगर एक ही घर बना देंगे यहाँ पे तो द स्पेस इज नॉट एक्चुअली यूटिलाइज्ड, राइट? सो हियर ऑल्सो क्या फ़ायदा है अगर एक ही प्रोसेस रन करना है, तो मेमोरी मैनेजमेंट पड़ी क्यों रही है? ठीक है, हमें एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन कराना है. सो हियर इन पार्टिशनिंग वी हैव टू टाइप ऑफ टेक्निक्स. The first one that we will study here is fixed partitioning, right? And the other one is variable partitioning. Partitions होंगे, आप समझ ही गए होंगे कैसे partitions हो रहे हैं. Here the size is fixed, but here the size is variable. And what do you mean by the size? Fixed size partitioning means what? What is fixed?
What is fixed? These partitions. And what is variable? Variable size partition means different sizes Ma'am, the partition. size can be changed. Yes. Now, again this fixed size, in this fixed size, we have two ways of partitioning it. And how do we do that? आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसा करो कि साइज है इक्वल साइज है, आइदर इट इज इक्वल साइज्ड पार्टीशंस. देखो पार्टीशन भी तो हो सकते हैं ना. अगर मान लो आपको एक केक को डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड दिस केक. फिक्स्ड पार्टीशन मीन्स ऑल पीसेस आर सेम साइज, है ना. और अदरवाइज क्या होगा, एक ये पार्ट है, एक छोटा सा ये है, फिर ये छोटा सा है, ऐसे करके. ये क्या है, अनइक्वल साइज है, बट ये दोनों किस में आएंगे, फिक्स साइज में. समझ आ रहा है नहीं आ रहा, एक्नॉलेज करते हैं Yes, ma'am. साथ साथ. Yes, ma'am. इक्वल साइज पार्टीशंस एंड दूसरा क्या है, वेरिएबल साइज पार्टीशंस. समझने की कोशिश करो क्या बताना चाह रही हूँ मैं इसमें. लेट मी कंप्लीट इट देन आई विल एक्सप्लेन. राइट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एग्जांपल बहुत अच्छे से मैं आपको देती हूँ. केक या पिज़्ज़ा ले लो आप, ठीक है. पिज़्ज़ा वाले समझदार होते हैं ना, क्या करते हैं वो पहले ही इक्वल डिवाइड कर देते हैं कि नहीं पिज़्ज़ा को. Yes, ma'am. वैसे ही पिज़्ज़ा लोगों का फेवरेट होता है, और उसमें भी पार्टी अनइक्वल साइज कर दोगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी. हो गए. Yes, ma'am. बिल्कुल. सो दिस इज इक्वल साइज्ड. ये वाला एग्जांपल क्या है, इक्वल साइज. कितने पार्टीशन है इसमें, हाउ मेनी पार्टीशंस आर देयर, 8. हियर आल्सो 8 पार्टीशंस विल बी देयर. ये यहाँ पे भी कितने होंगे, 8 पार्टीशन होंगे, बट वो 8 पार्टीशन कैसे होंगे, Unequal. अनइक्वल होंगे. ठीक है, एक पर्सन को दे दिए ये 2 टुकड़े, 1 and 2, और बाकी इसके कितने टुकड़े कर दिए, ऐसे करके 6 ये हो गई, 2 ये हो गई, ये भी 8 ही है, बट ये अनइक्वल साइज है और ये क्या है, इक्वल साइज. बोलिए, समझ आया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट. तो अब ये तो चलो क्लियर हो गया हमें. अब हम इसको मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. और वेरिएबल पार्टीशनिंग पता है क्या है, देखो ये क्या है, वे इज इट गुड और नॉट, साइज इक्वल कर दिए. यहाँ पे तो ठीक लग रहा है, ये वाला तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना. क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा मतलब है ना चालाक जो होगा, वो क्या करेगा, जैसे ही आया पिज़्ज़ा सबसे पहले ही 1 और 2 पीस पे एकदम से क्या करेगा वो, हमला. he will grab these, हाँ, he will attack on this 1 and 2, right. Yes, ma'am. ऐसा होता भी है, ठीक है. बट Yes, ये ma'am. वेरिएबल साइज वाला क्या कह रहा है, चलो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है. वो कहता है कि आई थिंक भाई ये केक है आपका या पिज़्ज़ा है. इफ़ आई से आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, लेट्स से, है ना, मुझे पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं है, तो मेरा तो ये पार्टीशन भी वेस्ट होगा कि नहीं, ठीक है. Yes. तो इसने बोला कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग अपने हिसाब से खाओ. तो लेट्स से आई केम, मैंने तो इतना छोटा सा लिया पीस, राइट. देन लेट्स से अनदर स्टूडेंट केम, ये मतलब बर्थडे पार्टी हो रहा है मेरा या टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है. तो तुम लोग अभी केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जिसने लिया है ना केक वो कहेगा मैं तो सबसे बड़ा खाऊंगा. तो वो जो लेके आया था केक, उसने ये वाला पार्टीशन ले लिया, ठीक है. फिर मतलब चांस है, मतलब कौन आ रहा है पहले वो उस हिसाब से ले रहा है. जो पहले बच्चा है उसने इतना बड़ा पीस ले लिया, फिर एक और स्टूडेंट आया, उसने वो भी एक थोड़ा सा पिज़्ज़ा फेवरेट नहीं, पसंद नहीं था उसको, उसने भी थोड़ा सा लिया, ठीक है. हेलो. तो ऐसे करके क्या है, जैसा रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वी आर टेकिंग द पीसेस, यस और नो. और आपने केक में देखा होगा कुछ लोग तो बस इतना थोड़ा सा ही लेके चले जाएंगे, बस जस्ट टेस्ट करेंगे. So the thing is, partitioning is first of all divided into fixed size partitioning and variable size partitioning. In fixed size partitioning, the number of partition in equal size partitioning and variable size partitioning is same. 8 and 8 are there, but here all the partitions are of equal size, and here you will find variable sizes. एक बड़ा भी है एक छोटा भी है, तो जिसको बड़ा खाने का मन है वो बड़ा ले लेगा, जिसको छोटा खाने का मन है वो छोटा ले लेगा, राइट. यस और नो. Yes, ma'am. एंड व्हाट अबाउट वेरिएबल, ये वेरिएबल साइज नहीं है एक्चुअली. ये क्या है, इसको हम ये नाम नहीं बोलेंगे, इसका नाम होगा हमारा डिस्कस डायनेमिक पार्टीशनिंग. इसको वेरिएबल साइज तो इसी में आ गया ना, ये दिख रहा है आपको, दिस इज डायनेमिक.
डायनेमिक क्या होता है? एंड दिस इज फिक्स साइज है, तो इसको नाम हम एक और नाम दे देते हैं, इसको हम स्टैटिक भी बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं स्टैटिक? एनीवन? It is done before the coming of processes. I hope all of you have studied linked list. Have you studied linked list or not? Yes, ma'am. Size of Yes, your ma'am. queue and array is already fixed, but in linked list what happens? Linked list is dynamic, right? जो भी memory location free होगा उतना ले लेगा. Size can be increased or it can be decreased accordingly, but you can relate it this way. Okay, I hope it is clear. Any doubts in this? No, ma'am. पहले आपको थोड़ा ऊपर से बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं. अब इन सभी टेक्निक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? आई एम स्विचिंग दिस टू द नेक्स्ट स्लाइड. मीनवाइल एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट वी स्टडीड इन जस्ट अ मिनट. चलो जल्दी बताओ, शाबाश, बोलो भाई. We have equal, variable, and dynamic type of partitioning. इक्वल वेरिएबल, Equal, Partitioning is variable, and the third one is dynamic. इक्वल साइज्ड पार्टीशनिंग. Ma'am, Yes, we ma'am, have two equal types size. of partitioning. First one is static and then second one is dynamic. Static one is divided into two partitioning. And the first one is equal partitioning and the second one is variable sized partitioning. Very good. Okay, chaliye. Now I am studying about fixed partitioning. Fixed partitioning is divided into, tell me any one of you. Equal sized and variable sized. Yes, equal size partitions, right? Very good. Equal size partitions and वेरिएबल साइज. ठीक है, चलो अब इसका हम ना मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है, राइट? एनीवन, लेट्स से समटाइम्स इट हैपेंस, वेरी रेयरली इट हैपेंस दैट आई स्पीक इन हिंदी, बट इज इट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन? प्लीज रेज योर हैंड. Very occasionally it happens because it's our mother tongue, na, so it happens. Anyone? Any kind of issues? Is someone there who is finding difficulty in this? It's not related to your concepts I basically explain English only. Sometimes it happens. Is there anyone? No, ma'am. Okay, chalo, let's move on. Now see, all of you, what we are doing is I am taking this partition here. What I am trying to do here is so some part is dedicated for your operating system. Here also some of the part will be dedicated to your operating system, right? Let's say I dedicated 8M. What is 8M? M is what? बताया था ना आज मैंने, मेगाबाइट ले लो इसको ऐसे करके, ठीक है? और अगर नहीं लेना है अभी कुछ भी साइज तो 8 लिख लो बस, तो ठीक है? दिस 8 इज अ यूनिट, इट कैन बी एनीथिंग, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, कुछ भी ले सकते हो इसको, ठीक है? आवर कंसर्न इज नॉट द यूनिट ऑफ दिस size. Okay, so now what I am doing is I am creating here 5 partitions. All the partitions are of equal size, that is what? Let's say I create 8, 8, 8, then 8 and 8. Can you see all of them are equal in size? Yes, ma'am. Total कितना हो गया? 40 हुआ कि नहीं? Yes. इसमें भी यही होगा, कॉन्सेप्ट को एक ही मेमोरी से समझो. ये भी 40 है बट इसका साइज वेरिएबल होगा. तो लेट्स से पहले वाला है 2, फिर हमने लिया 4, सम 40 कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए. Yes, ma'am. पर पार्टीशंस कितने हैं यहाँ पे? पार्टीशंस 1 2 3 4 5 है. यहाँ पे पार्टीशन कितने रहने चाहिए? 5 ओनली. Yes, ma'am. 5 ही होने चाहिए. तो 2 4 हो गया. और बताओ क्या ले सकते हैं? लेट्स से मैंने ये 6 लिया, फिर 8, लास्ट वाला क्या होगा ये बता दो बस. 20. 20.
चलो एक और मैंने 8 ले लिया, लेट्स से एक मैंने 8 ले लिया, ये तो बने नहीं ना बराबर। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, ज़रूरी नहीं है आपके पार्टीशन से यहाँ पे 5 ही होंगे, 6 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत ये इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। द थिंग इज इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ पार्टीशन, ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर? लेट्स से 6 भी हो Yes, सकता है, ma'am. 5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट साइज मेमोरी का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा मत सोचना कि दोनों को फिक्स ही करना है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट, बट यहाँ मैंने 6 लिया, 8 एंड ये 12 हो गया। कितने पार्टीशन हुए यहाँ पे? 6 हुए, बट टोटल कितना हो गया? व्हाट इज टोटल? No, 15. 40 है ना दोनों में, बस ये मेन होता है हमारा यहाँ पे, राइट। अब इसमें क्या है, मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टैटिक पार्टीशंस। सो व्हाट आर दीज पार्टीशंस? दीज बोथ पार्टीशंस आर Static. static partitions. And what do you mean by static? आपने डेटा स्ट्रक्चर बताया, पढ़ा है, तो स्टैटिक का मतलब क्या है? It is allocated before the execution. Exactly, compilation. Before execution से मतलब या compilation से पहले हमने प्रोग्राम को allocate कर दिए। Yes or no? Yes, ma'am. आपने प्रोग्राम Yes, को ma'am. रन नहीं किया है, you have not executed the program. Already you have fixed the size of the array as 20, 30. Okay? तो यहाँ पे भी आपने क्या कर दिए, आपने फिक्स कर दिए अपने पार्टीशंस, ठीक है। यहाँ पे भी आप फिक्स कर सकते थे, इसमें मैंने 5 किया, इसमें 6 की मर्जी, अगर इसमें 5 करते तो ये कितना हो जाता, 20 जो आप बोल रहे थे। क्लियर हो गया ये सबको? एट Yes, व्हाट ma'am. टाइम? बिफोर कंपाइलेशन, और यू कैन से सिस्टम जनरेशन टाइम पे भी हम इसको बोल सकते हैं। सिस्टम जनरेशन टाइम पे आई विल फिक्स द नंबर ऑफ पार्टीशंस, राइट। Out of these two, tell me which one is better, equal size or variable? Out of these two only, tell me which one is better. सोच समझ Variable के size. बोलना। Yes, variable size. Why? Why Well, variable size? because the process which will take more memory will get more share, and thus no memory will get wasted. नो वेस्टेज तो होगा, बट अभी के लिए बताओ, जो पहला तुम बोल रहे हो उसी को क्लियर करो। यस, योर आंसर इज राइट, बट Ma'am, इट्स like नॉट क्लियर। if a process takes more memory, then he can take the bigger part of the. Exactly. Anyone else? Any other student? I explained the same thing in the cake example, cake and pizza example. Section A. Yes, ma'am. Tell me. बोलो। अरे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे साइजेस क्या है, सबके ही 8 है ना। अगर अब मेरा 12 साइज का आ गया तो, अगर या 10 साइज का आ गया तो वो तो नहीं आ सकता ना इसमें। यस और नो? Yes, ma'am. और लेट्स से अगर मेरे से जो प्रोसेस का साइज है दैट इज 2 MB, 4 MB, 6 MB, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ वेस्टेज हो जाएगा, ज़्यादा वेस्टेज होगा। ज़्यादा बड़े बड़े पार्टीशन भी नहीं करने चाहिए। अगर मान लो आपको केक कट करना है अपने घर में, किसी को देना भी है, बहुत बड़े बड़े पीसेस काट के दोगे क्या किसी को? बहुत बड़े बड़े? क्यों? उससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत कम चांसेस हैं कि, देखो अगर केक के पीसेस बहुत बड़े काटेंगे ना तो बहुत कम चांस है कि वो पूरा पूरा केक कोई खा पाए, तो वो क्या कर देगा, फेंक देगा, वेस्ट हो जाएगा वो, है ना। और अगर उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दोगे तब भी क्या होगा, वो उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं होगी खाने के लिए, ठीक है। द थिंग इज हियर, इफ अ प्रोसेस अगर बड़े साइज का लाएंगे, लेट्स से अगर मुझे एक प्रोसेस लाना है यहाँ पे 10, तो वो तो आ नहीं पाएगा, है ना। और अगर है प्रोसेस 2 का या प्रोसेस है 4 का, यहाँ क्या होगी, वेस्टेज होगी कि नहीं, बोलो। बट इसमें क्या होगा, वी कैन अकोमोडेट द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द, अगर मान लो 2 की आई तो हम 2 वाला इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी, तो कंपैरेटिवली देयर विल बी लेस वेस्टेज। यस और नो? सो आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज बेटर? Which one is better? Variable size partition. Variable. So this is better. Out of these two, this is better, right? And out of
fixed partitioning and dynamic partitioning. This fixed partitioning concept is very simple. It is very simple to implement, right? क्योंकि simple क्यों है? Simple ही तो है, simple partition कर दिए बस. अब बताओ array और linked list में से simple implement कौन होता था? Array और linked list में से. Array were simple to implement or not? Yes, ma'am. So it is also based on that concept only. Array वाला concept है तो simple to implement. But यहाँ पे जो एक problem आएगी ना, वो problem मैं पहले लिख रही हूँ, फिर मैं उसको explain करूँगी. जो problem आएगी that is called as internal fragmentation. यहीं से हमारी memory management बहुत detail में start होता है. Internal fragmentation. All of you please pay attention. Now see what I'm saying is, let's say अभी हमारे पास एक process आया, right? तो process आया, उसने space लिया, let's say P1 आ गया, उसने space ज़्यादा नहीं लिया, उसने लिया 6 MB लिया, तो ये 2 MB क्या हो गए? और एक और बात है, every process can be located into, एक process क्या होगा? one partition में ही आएगा. Every process can accommodate only in one partition. Please understand. One process can be accommodated in. बोलो. One partition. One partition. Right? Only one partition. अगर वो पूरा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो space क्या होगा? One process can be accommodated in one partition. Right? Yes. जैसे कभी कभी आप क्या करते हो, आप जाते हो, आपको लगता है आपको बहुत भूख लग रही है, बट यू विदाउट थिंकिंग यू जस्ट ऑर्डर 1 पिज़्ज़ा, 1 बर्गर एंड देन यू ऑल्सो ऑर्डर मोमोज. और प्रॉब्लम क्या होती है फिर? व्हाट हैपेंस देन? We aren't able to finish it. हाँ, यू आर अनेबल टू फिनिश इट, है ना? बट Yes, आउट ma'am. ऑफ एक्साइटमेंट यू ऑर्डर्ड ऑल ऑफ देम. यू थॉट नो आई एम सो हंग्री, आई ईट एवरीथिंग, but you can't. And sometimes when you are coming back to your home now from your school or college, your mom will call you and she'll say how much you want to eat. You'll say I'm very very hungry, I'll eat 5 chapatis. Just after going home you are not in a situation to eat even 2 chapatis and you are so tired that you just want to sleep. So these things happen, right, in real life also. So basically only one, so let's say process P1 has come and it is asking for only 6. So this is what, this some space is left, right? Agreed or not? Now after that, Yes, let's say another process came. एक और process आया हमारा P2. उसने क्या किया? उसने 4 MB लिया space. और 4 क्या हो गया? Waste हो गया. इसने 4 MB लिया तो ये जो space है ना, ये वाला नहीं, ये तो इसमें allocated है. ये जो मैं shading कर रही हूँ ना, this is what? Let's say ये 1 है, ज़्यादा नहीं है, 1 है. यहाँ पे क्या हो गया? ये 2 है, ठीक है? इस तरीके से लेट्स से एक और प्रोसेस आया है यहाँ पे P3. इट हैज़ ऑक्यूपाइड 5 एंड यहाँ पे कितने का होल क्रिएट हो गया? 3 का. नाउ द प्रॉब्लम इज एवरी टाइम व्हेन अ प्रोसेस इज कमिंग इट इज गिवन वन और द अदर पार्टीशन, राइट, है ना? वो उसको कोई ना कोई पार्टीशन मिलेगा, बट हो सकता है प्रोसेस का साइज जो है पार्टीशन से कम है, तो जब वो फ्री हो जाएगा, अब क्या होता है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. ये पार्टीशन है, ठीक है? तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये प्रोसेस यूज हो रहा है लेकिन ये क्या क्रिएट कर रहा है? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह बच जा रही है. उससे नुकसान क्या हो रहा है? कोई बता सकता है इससे नुकसान क्या है? पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रही. स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रही है, ठीक है? एंड मेमोरी इज, दिस इज कॉन्टिजियस. एक्चुअली दैट कॉन्सेप्ट दैट वी आर स्टडिंग इज कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन. कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब समझ रहे हैं आप? एक साथ ही मेमोरी मिलनी चाहिए. जैसे एरे में क्या होता है? एरे पता है आपको? एरे, एरे भाई, एरे में सारा स्पेस कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है? Yes, ma'am. पर लिंक लिस्ट में क्या है? एक जगह यहाँ पे रखा है, एक जगह यहाँ रखा है, ऐसे पॉइंटर से यहाँ पहुंच जाओ. बोलो. Yes, ma'am. ठीक है? एक्चुअली दिस इज कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, राइट? अभी प्रॉब्लम क्या है? दीज कॉन्सेप्ट्स, ये जो यहाँ पे डेवलप हो गए ना, ये वाले, इन सबको हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दीज आर कॉल्ड एज होल्स. क्या बोलते हैं इनको हम? होल्स. और ये होल्स इतने छोटे छोटे हैं कि अगर कोई नया प्रोसेस आता है ना, तो इनका साइज इतना कम है कि वो उसमें आ ही नहीं पाएंगे. यस और नो? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. सो
In this equal size partitioning, and now I'm revising everything what I have told you. In equal size partitioning, a program may be too big to fit into a partition. हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जो इसमें आ ही ना सके. मैंने जैसे कि 10 का एग्जांपल लिया, 10 cannot come. Yes or no? 10 cannot accommodate. Or it may be too small such that it is wasting lot of space, right? So main memory utilization is extremely. इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? If I write मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है इसमें? बोलो. इनएफिशिएंट है. बोलो, है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Memory efficient, memory utilization here is inefficient. Any program, no matter how small, occupies an entire partition. प्रोग्राम चाहे 2 MB का हो या 3 MB का हो, बट पार्टीशन तो पूरा यूज करेगा ना. बोलिए, तो उससे क्या होगा? स्पेस वेस्ट होगी. Waste हो रहा है, ma'am. आपने देखा होगा, बस देखा है आपने? बस के अंदर जो सीट्स होते हैं 3 सीटर और 2 सीटर, उसमें वेस्टेज वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. वो इसी हिसाब से बनी होती हैं कि 3 लोग अच्छे से अकोमोडेट हो जाएंगे, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो वो लोग अपना सीट्स ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि देयर इज़ लीस्ट चांस ऑफ वेस्टेज. ठीक है, अलग बात है कोइंसिडेंटली तीनों बहुत ही ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनसे स्पेस कम यूज़ हो रहा है, बट वो रेयरली होता है ऐसा. ठीक है. So any program, no matter how small, occupies the entire partition. There is wasted space. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बताओ? वेस्टेज बहुत हो रहा है भाई. और Yes, क्या ma'am. हमें ऐसी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए? हम मेमोरी मैनेजमेंट करने जा रहे हैं और ऐसी टेक्निक को ले ले जिसमें इतना स्पेस वेस्ट हो रहा है, फायदा क्या है फिर? बोलो. मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है. ठीक है. So there is wasted space internal to a partition due to fact that block of data loaded is smaller than partition, and this concept is called as internal fragmentation. समझ आ गया? ऐसे जो छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो गए हैं ना, इनमें ना तो कोई कुछ आ सकता है बाद में और ये कुछ फायदा नहीं होगा इससे. So both of these problems can be lessened through not solved by using unequal size partition. तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ये वाला प्रॉब्लम पर्टिकुलरली. टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या लेंगे? Variable. ये वाला. टू रिजॉल्व दिस, राइट. तो इसमें क्या होगा? थ्रू नॉट अनइक्वल साइज पार्टीशन है ना इसमें. वेरिएबल साइज और यू कैन से अनइक्वल. इक्वल था वो, ये क्या है? अनइक्वल साइज. यस और नो? सो इन दिस एग्जांपल प्रोग्राम्स आर एज लार्ज एज, हो सकता है कि 12 बाइट्स का भी हो, 10 का भी हो, और ऐसा भी हो सकता है क्या? तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट ये जो छोटे छोटे पार्टीशन है इनको अवॉइड कर सकते हैं. बोलिए, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बताना है, बट इतना क्लियर है. Yes, ma'am. So these two Yes, techniques ma'am. come under, these two techniques of fixed partitioning comes under contiguous memory allocation. Yes or no? Yes, ma'am. आप कितने भी बुक्स पढ़ लेना, लेक्चर, वीडियो लेक्चर कहीं से भी पढ़ लेना, बट ये जो एक पेज है ना, ये सब कुछ समझा रहा है आपको, शॉर्ट और क्रिस्प. ठीक है. तो नाउ अ प्रोसेस इफ इट हैज टू रन इज टू बी लोडेड. अब मैं जो मेन बात बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो. अ प्रोसेस इफ इट हैज टू बी रन, अगर किसी प्रोसेस को रन करना है या एग्जीक्यूट करना है तो उसको कहाँ लेके आना पड़ेगा? मेमोरी में, और मेमोरी के किसी एक पार्टीशन में. यस. एंड इट शुड बी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इन वन पार्टीशन, देन ओनली इट कैन रन. ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे है. ठीक है. इट शुड बी टोटली इन वन पार्टीशन. ओके. दिस प्रोसेस इज नॉट सपोज टू एक्सपैंड इन मेनी पार्टीशंस एंड दीज contiguous memory allocation will cause various problems. One is internal fragmentation, other is there is external fragmentation that will occur here. But अभी इतना क्लियर है जो मैंने समझाया है? Yes, ma'am. तो what is Yes, internal ma'am. fragmentation? प्रोसेस हमारा आया 2 MB के साइज का, मान लो यहाँ पे 6 MB का आया, और बचा हुआ जो था स्मॉलेस्ट पार्टीशन हमारा यहाँ से क्रिएट हो गया, छोटे छोटे ये होल्स क्रिएट हो गए. तो इन शॉर्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन क्या है? whenever you have a partition and in that partition if you try to put a process and if that partition is going to have some extra free space, then you cannot fill that free space with any other process. Basically इसमें कितने पार्टीशन थे? 5. पहले पार्टीशन की वजह से 2 का होल बना, सेकेंड पार्टीशन की वजह से 1 का होल बना, और थर्ड पार्टीशन की वजह से 3 का होल बना या नहीं? Yes, ma'am. Yes, बट ये होल्स इतने छोटे हैं कि इनमें कुछ नया ऐड नहीं हो सकता है. यस और नो? Yes, ma'am. एंड दिस कॉन्सेप्ट तो किस में आया ये हमारा?
इंटरनल फ्रैगमेंटेशन किसके अंदर आ रहा है? Equal size. Equal size partition. आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ. अब हम करेंगे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का मतलब समझेंगे क्या होता है. ध्यान से समझिएगा. अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा. देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं. कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंडर क्या आता है, ठीक है. फिक्स पार्टीशनिंग को आप कितने में डिवाइड कर सकते हो, इक्वल साइज पार्टीशनिंग में क्या होता है, वेरिएबल साइज में क्या होता है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन किस में प्रॉब्लम आता है, एक्सटर्नल किस में प्रॉब्लम आता है, क्या हम एक पार्टीशन में एक से ज़्यादा प्रोसेस एलोकेट कर सकते हैं, क्या इक्वल साइज पार्टीशन एफिशिएंट है या नहीं है. सो मेनी थिंग्स आर देयर. ये स्टैटिक है, स्टैटिक क्यों है, ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है क्यों है. सो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना, तो ये छोटे मोटे ऐसे कितने भी 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे तो भी यू विल एबल टू आंसर एवरीथिंग. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. धनुष शोभन अद्री एंड नवीन. धनुष शोभन अद्री एंड नवीन. Yes, ma'am. आर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. कुचू कुचू और कंप्लीट. यस. Complete. हेलो. कंप्लीट. ओके. कुचू कुचू यू नो ना व्हाट कुचू कुचू मींस? No, no, ma'am, no. Little कुचू bit. कुचू इज अ तेलुगु वर्ड. कुचू कुचू मींस थोड़ा थोड़ा. Am I Ma'am, in right, Naveen? Telugu, that's not kuchu kuchu. तो Koncham फिर क्या koncham. होता? हाँ मतलब ठीक है. आई वॉज इन साउथ सो आई That's रिमेम्बर थोड़ा better. सा. कुंचम कुंचम. So Yes, all of ma'am. you, is the concept kuncham kuncham clear or complete? Complete, ma'am. Complete. Complete, ma'am. Okay, चलो. Let's come back to the topic. Now coming to external fragmentation. इसमें क्या होता है, right? अभी ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहे हैं. Even though we have total, अभी देखो यहाँ पे total free कितना space है. मान लो ये सभी partition से यहाँ से कुछ ना कुछ holes create हो रहे हैं. तो यहाँ पे total free कितना हुआ? मान लो यहाँ पे ऑक्यूपाइड है सारे प्रोसेस ना. P2 और P3 मैंने यहाँ पे P4 और P5 डाला. ये पूरा 88 MB का है, ठीक है. यहाँ कोई होल नहीं है. यस और नो? Yes, ma'am. टोटल फ्री कितना हुआ? 2 + 1 + 3 हाउ मच? 6. Ma'am. नाउ सी. अब मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो ये तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या है. whenever a process is coming which is smaller than the size of the partition, some space is left, that is called as holes, and this process is called as internal fragmentation. Yes or no? Yes, Yes or ma'am. Yes, no? ma'am. But what is external fragmentation? External fragmentation is saying that you have different partitions and the total free space actually कितना है? 6 है. Let's say अब एक process आया, it requires only 5. Can you accommodate this process into this? Can we accommodate this process, let's say 6 into this 6? ये जो total free space है इसमें हम allocate कर सकते हैं? No, ma'am. If it is a No. single Can you tell me fragment, can you tell me a exact reason क्यों नहीं आ सकता? Ma'am, because as you said, process is to be put in a particular partition only, but these spaces Yes. are left in subsequent partitions. Partition. Yes. So, Very ma'am, good. if it was a Point. single partition, then definitely we could have put that process in that partition, but I don't think it is possible in this case. Yeah, exactly. And moreover, it is contiguous memory allocation, right? We can't divide this process into partitions, different partitions, and only one partition can hold one particular process. Very good, Kunal. I hope it is clear, all of you. yes, ma'am. So now I am repeating the definition of external fragmentation. I will repeat it 2 times, so please pay attention. Even though we have total free space available, what is this free space? Even though we have free space available, right? We will not be able to assign it to a process because of the requirement that process has to be contiguous, right? But memory available is not contiguous. Memory Yes, ma'am. available is not Not contiguous. contiguous. I hope it makes a sense. And this concept is called as external fragmentation. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, very good. So, but in these cases, the problem is the degree of multiprogramming is very, very limited. Can you tell me why? Anyone of you?
Yes or no? Remember what? Memory multi-programming is limited, restricted. Ma'am, because the space that a extra process can occupy to run is getting wasted. Yes, exactly. I hope it is clear to all of you. Yes or Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी, इसको हम ना एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू that whenever there is internal fragmentation in memory, there will be external fragmentation. Do you agree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I hope you all agree with this. Yes or no? Yes, ma'am. और ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत रहा करो. अगर किसी को लगेगा कि एक ही स्लाइड है, मान लो मैंने पूरे लेक्चर में ये एक ही स्लाइड पढ़ा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड ना कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर. Yes, ma'am. यस और नो? सो ज़्यादा नोट्स वोट्स कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो मैं दे रही हूँ उतना काफ़ी है, बट एक बार उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है. राइट. सो इफ़ क्या है, सो whenever there is internal fragmentation, what हो क्या होगा? Whenever There will there be is also an external fragmentation. right, whenever there is internal fragmentation अगर होगा तो there will be what? External fragmentation. But ma'am, Yes. can we consider a situation where we do not have any, let's say P6 that we get as an example in the previous slide? नहीं तो प्रोसेस तो आते रहेंगे ना. Right, ma'am. Okay. प्रोसेस तो आते रहेंगे, फिर क्या फ़ायदा है मेमोरी Yes, मैनेजमेंट ma'am. का? मतलब 5 ही प्रोसेस थोड़ा ना है. यस. Yes, ma'am. अच्छा, नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज, लेट्स से पार्टीशंस हमारे यहाँ क्रिएट हो गए थे, छोटे छोटे होल्स हो गए थे. ये जो होल्स थे हमारे, लेट्स से दिस इज वन होल, this is one hole, like this. Holes were created, right? Now there is a technique to resolve this. What is that? So this is कितना स्पेस था, अभी बता सकते हो? मुझे याद नहीं है. यहाँ कितना था, यहाँ कितना था, यहाँ. Anyone? I guess 2, 1, 3. Let's say 2, 1, 3. ठीक है. Yes, ma'am. What I'm doing is, आप लोगों को पता है डिस्क फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं. देयर इज अ सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है, इट विल फाइंड आउट वेदर योर मेमोरी इज एलोकेटेड कॉन्टिजियसली और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या होता है, ऐसे पता चल जाता है. ऐसे तो बहुत सारी रेड लाइंस होंगे ना आपके सिस्टम में, तो अच्छे से वो नहीं है. तो ये क्या करता है, जब आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हो तो ये सारा जो एलोकेटेड है उसको एक साथ ले आता है और फ्री को एक साथ ले आता है, ताकि इसमें प्रोसेस को रन किया जाए. तो अगर मान लो मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि अब जो हमारा सिस्टम बनेगा ना, ऑल द फ्री, ये सारा था, ये क्या था, यूज्ड वाला, ये यूज्ड है, राइट. ये यूज्ड वाला इज हियर ऑक्यूपाइड, एंड दिस फ्री वन इज combined together, and this 6 MB is free. बोलो, this gets free. Yes or no? Yes, ma'am. So एक साइड फ्री हो गया और एक साइड यूज्ड हो गया. This technique is called as compaction. There is a technique to resolve this. What? Technique to resolve external fragmentation. What is that? Compaction. Compaction का मतलब क्या है? What is compaction? To bring all the free space together. Together and make it as an individual And partition make it available. Make it available for the. for another process to be executed. Exactly. अब हम पढ़ते हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग. 5 minutes, please cooperate with me. Okay. So what we will do in here? Yes. क्योंकि फिर टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा अच्छे से. So now dynamic partitioning is dynamic, or we call it as section A not responding at all. I think Yes, kuncham is happening. Yes. मैम अच्छी से समझ आ रहा है, इसलिए डोंट हैव टू आस्क अगेन, आई गेस. मुस्तफा इतने आराम से बोल जाते हो. हाँ ठीक है, समझ आ रहा है ना मतलब. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्चुअली इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड ना, आई वांट इक्वल पार्टिसिपेशन, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है मेरा सेक्शन हो गया ये क्लास. ठीक है, चलो ठीक है. सो नाउ कम बैक टू दिस. So any process which wants to compete for main memory, we put it into one of the partition. It is clear to all of you? Okay. Always a process has to take one partition completely. It cannot expand over 2 partitions. This is agreed?
Yes, ma'am. Agreed? Yes, ma'am. We Yes, ma'am. cannot Yes, put ma'am. we cannot put two processes in the same partition. This is also agreed. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So now what we will do in this dynamic partitioning, let's say creating a memory, right? Some part is allocated for operating system. और इसमें चिल है, बिल्कुल कोई पार्टीशन नहीं है, एक ही सिंगल पार्टीशन, सिंगल ही पार्टीशन है पहले, ठीक है, यूजर के लिए. व्हाट हैपेंस, P1 इज कमिंग, लेट्स से इट इज सेइंग मुझे 4 मेगाबाइट्स चाहिए, तो ले लो भाई. P2 आया, वो बोला कि मुझे 3 चाहिए, कह रहा ले लो, P2 भी दे दिया. देन P3 केम एंड इट वांट 1, तो ठीक है भाई आ जाओ. इस तरीके से क्या हो रहा है, so many processes are coming and they are taking the, let's say, memory. जैसे उसमें होता है ना लिंक लिस्ट में, yes or no? Yes, So ma'am. when your process Yes, comes, right, when process come, तभी क्या create होगा, Partition. Partition. then only what, partition Partition is. will be created. But पहले वाले केस में क्या था, Partition was created initially before the compilation of the process. exactly, before we knew कि how many processes will come, please understand, before we knew how many processes will come, हमें नहीं पता कितने आएंगे, बट हमने क्या कर दिया, पहले से ही पार्टीशन बना के तैयारी कर दी है. Yes, ma'am. ठीक है, ये तो वही बात हो गई, केक कटानी है, केक के पीसेस काट के रख दिए, ठीक है. हाँ जी, Yes, ma'am. okay. Yes, So when process come, then the partition is going to be created, right? So यहाँ पे क्या होगा, क्या वेस्टेज लग रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है. No, ma'am. So here no wastage, वेस्टेज नहीं हो रहा है. अब मैं इस पे आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन सोचने के लिए दूंगी, दैट यू हैव टू आंसर. So because of internal fragmentation, if there is some wastage in memory, all the wastage put together, that is making some size in all partitions. ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, ठीक है, राइट. सो इफ देयर इज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, देयर इज डेफिनेटली एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ये आपको क्लियर है. बट डायनेमिक पार्टीशनिंग में क्या है, क्या क्या हमारे साथ हमने क्या चीज़ें नोटिस की. फर्स्ट, नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, यस और नो. Yes, ma'am. दूसरा क्या हो सकता है, No external fragmentation also. External इसमें ना, fragmentation. इसमें एक और प्रॉब्लम है जो उसमें थी, मैंने वहाँ पॉइंट ये मेंशन नहीं किया. नो लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने भी आ सकते हैं यहाँ पे. बट वहाँ तो लिमिट पार्टीशन अगर मतलब 5 है तो पहले ही क्या फिक्स हो गया, अगर 5 पार्टीशन है तो पहले ही फिक्स हो गया भैया, 5 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते. एंड इट कैन ऑल्सो बी सेट दैट 5 से कम भी हो जाए. क्यों, पार्टीशन मान लो सारे 8-8 MB के हैं, है ना, आपके पास पहली बात तो 5 ही प्रोसेस आएंगे, लेकिन उन 5 प्रोसेस में से अगर 2 प्रोसेस 10 MB और 12 MB ले रहे तो ऑटोमेटिकली कितने प्रोसेस आएंगे, बोलिए. 3. शाबाश, समझ आ गई. तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन था या नहीं. Yes, ma'am. बट Yes, यहाँ ma'am. तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, वो तो बाद में पता चलेगा कि पूरी मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई है या नहीं, बोलिए. Yes, ma'am. एंड हियर नो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नो लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज. क्या प्रोसेस का साइज फिक्स होना चाहिए, No, ma'am. वहाँ इक्वल साइज में क्या था, सारे प्रोसेस 8 MB से 8 MB तक ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. एंड अनइक्वल में क्या था, 2, 4, 8, उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते. मैक्सिमम जो भी था लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. Yes, सो ma'am. इक्वल साइज एंड अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग में क्या था, द साइजेस वर ऑलरेडी फिक्स, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम साइज होगा ना पार्टीशन का, उससे ज़्यादा बड़े साइज का नहीं आ सकता. बट इज इट द केस हियर, यहाँ पे तो किसी भी साइज का प्रोसेस आ सकता है ना. Yes, ma'am. So no internal fragmentation, right? No limitation on any number of processes and no limitation on process size. बोलिए. इतना मेहनत करके आंसर 0 आ गया. Clear. अब ये था हमारा Yes, जो ma'am. इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था. अब इसी कॉन्सेप्ट से क्या शुरुआत हो गया, पेजिंग. कैसे समझ आया, पेजिंग कैसे आया. पेजिंग का मतलब क्या है, आप अपनी मेमोरी को इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. क्यों करोगे, और बहुत छोटे छोटे साइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि आप मैक्सिमम प्रोसेस को अकोमोडेट कर सको. ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे. बट आपको ये बात समझ आई जो मैं समझाना चाहती हूँ, यस और Yes, नो. ma'am. Yes, ma'am.
ये जो कॉन्सेप्ट है ना पार्टीशन का, इसी पार्टीशन कॉन्सेप्ट से क्या अराइज हुआ? पेजिंग. बोले yes. Yes, And ma'am. from the next class onwards, next few lectures will be very very important and they will require a lot of efforts. Okay, so that's all for today.